ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। आज आलोच्य कारिका नंबर 47। When I read a wearisome book through and with pleasure, yet perceived all the perfection of its wearisomeness, then I know that my mind was conquered. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାନ୍ତିକର ବହି ମୁଁ ଆମୂଳଚୂଳ ପଢ଼ିଲି, ଖୁସି ମନରେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହିଟିର ଦୁଷ୍ପାଠ୍ୟତାର ଉତ୍କର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଛି, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ମୁଁ ମନକୁ ଜୟ କରିଛି। ଏହି ଆଫୋରିଜିମ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଫୋରିଜିମ୍ଟା କ'ଣ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲାନ୍ତିକର ବହି ମୁଁ ଆମୂଳଚୂଳ ପଢ଼ିପାରିଲି, ଆରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ବହିଟାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସବୁ ଅଛି। କେତେକ ଲୋକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ବହିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବହି ବାହାରିଲା ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିକି ତାକୁ ପଢ଼ିବେ ନା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସବୁ ଲାଇକ୍ ପଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ରାଇଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବା ତା'ର କାହାକୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଫିଲୋସଫି ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ନୋଭେଲ୍ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ହେଲେ ତେଣୁ ଲୋକ ସେ ବହି ପଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାନ୍ତିକର ଯେଉଁ ବହିଟା ମାନଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଆଜେ ବାଜେ ବହି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିକିରି ଖୁସି ମନରେ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ବୁଝିଲି ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଏଇଟା କି ବହି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ମୋ ମନ ପ୍ରତି, ମୋର ରୁଚି ପ୍ରତି, ସାଧାରଣ ଲୋକର ରୁଚି ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ତାର ଗୋଟେ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ସେ କେଉଁଟା କୁହେ ଏଇଟା ଭଲ, ଏଇଟା ମନ୍ଦ। ତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା, ତାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ତାର ଯେଉଁ ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ, ଏଇଟା ସେ ଏ ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ସବୁ କଥାଟାର ସବୁ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ ଏମିତି ସବୁ କୁହେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଗୀ, ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଚେତନା, ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ଯେମିତି ଅଛି, ସିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଯେମିତି, ସିଏ ଶ୍ରୁତିଷ୍ମାନ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ, ଆଉ ସିଏ ଆନନ୍ଦମୟ, ଚୈତନ୍ୟମୟ, ସତ୍ୟମୟ। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ସଦାବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସେ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଚେତନାରୁ ସେଇ ଚେତନାରୁ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଚେତନାରେ ସବୁ କଥାଟାକୁ ସେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ସେଇ ଚେତନାରେ ମସଗୁଲ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନେକର, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କେମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ଲାନ୍ତିକର ଲେଖା ଲେଖିପାରିଲା ହୋ, ସେଟାକୁ ବି ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ କଥା ୟା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାପରେ ତାକୁ ପଢ଼ିବି। ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ, ତା ମାନେ ସିଏ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ସବୁ ସଦାବେଳେ ଏଇ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେତେଟା ଆମେ ଆଫୋରିଜିମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି 47 ନମ୍ବର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଗତ ମନ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଟା, ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଦି ଗୋଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣୀ ନା, ଆଉ ସେ ପଶୁର 4ଟା ଅଛି, ତାର 2ଟା ଅଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନଚେତନାରେ ଅଛି। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଶାନ୍ତିମୟ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ, ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆବିଷ୍କାର, ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସେ ବିରାଟ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବିରାଟ, ସେ ପୁଣି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷର ଅତୀତ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱତୀତ, ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ବିଶ୍ୱ, ସିଏ ବିଶ୍ୱତୀତ, ସେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ସେ ଅସୀମ, ସେ ଅନନ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଏଇଟା ଖାଲି କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ଯୋଗୀମାନେ ଏଟାକୁ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମମୟ, ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମମୟ, ଏଇ ଚେତନାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଚେତନାରେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସିନା, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ମୁଲା ବାହାର କଲି, ସବୁ ତ ତାର
आविष्कारक बा तार ये तो मु ना मु जेते प्रकार हो मु जड़े हूँ मनकर मु जड़े गुड़िया को केते प्रकार मीठा मत जना अच्छे केते प्रकार बरा पकुड़ी अमुक समुक मत जना अच्छे केते प्रकार खजा केते प्रकार मिठा केते प्रकार कौन निमकिन विमकिन सब मत जना अच्छे सब अलग अलग हेले सब कर्ता तो मु ना तेणु मत कौटा मुझे जेहेतु सब कथा को सृष्टि करी मोर कौटा को घृणा करार ना बा मु साधारण मनीष भाई जमी गोटे बाप कि पुओ को प्रति गोटे आसक्त अच्छी मोह अच्छी मो पुओ मो स्त्री हाँ भगवान एत शुद्ध एत विराट जे तांकर एत निम्न कोटिर आसक्ति ना तांकर प्रेम अच्छे समस्त प्रति समान प्रेम अच्छे आसक्ति ना तेणु सी हेले कहीं सी शुद्ध से सत्य आम साधारण मनीष भाई दुख ना घृणा ना आमर जो आमर कौन सब आम भितर सब दीटा कथा अच्छे पॉजिटिव नेगेटिव क्या भल पाइलु क्या घृणा कलु कौटे भय कली कौटे माने धम देखली ए सब मनीषटा एमती गोटे डुआलिटी भितर अच्छी बुद्धिगत स्तर पर्यंत ये डुआलिटीटा अच्छी ये द्वैत भाव अच्छी एवं किंतु ता उपरे जो आरंभ जो प्रज्ञा कथा कहुच्छी सी हूँ प्रज्ञान ब्रह्म सी से स्थिति रे तांकर यही प्रोब्लेम गुड़ाक यही मानुष्य समस्या दृष्टि यही गुणा ये जो डुआलिटी एटा नहीं सबुतिर ताकर आनंद एभली कि श्री अरविंद क्षेत्र में कहुई जे जेतेबेले से बरोदार थिले सेतेबेले मध्य दिनेन्द्रनाथ राय ना कौन तांका ना जे शुणुते तो बंगला शिखि नथिले ना तांका मातृभाषा भी शिखि नथिले पिलादिन रहिले इंग्लैंड रे को से बंगला शिक्षार चांस कोठ अच्छे तेणु जहाँ तो भारत आसिक कम कला शिक्षा पड़े सब भाषा तो सी तो जड़े ग्रेट लिंग्विस्ट माने सेठी थिला बेलू कि 6-7 भाषा पुणी इंडिया को आसिक पुणी आहुरी से केते 14-15टा भाषा से ये स्वयं तो भगवान कि मनीष भाव में सब भाषा को से शिखिं आ जड़े जोगी से पशुर भाषा भी बुझीपर से पवनर भाषा भी बुझीपर सूक्ष्म कहीं भगवान जो जो वाङ्मय शक्ति जो चेतनार क्रिया होची तार जो प्रस्फुरण होता तो से देखिपार बुझीपार ना सेटा को जानला सी वेद को जानी ना तेणु ये तो ये दृष्टि से सर्वज्ञ गोटे गचर भाषा अच्छी से पानी चाड़ूचे तुम गचरा लगे तार जो नवा कथा न से तार भाषा अच्छे स्पंदन अच्छे से भाषा हूँ तार सूक्ष्म स्पंदन से कौन चाहूचे तो जहाँ श्री से दिनेन्द्रनाथ राय लिखिं श्रीअरविंद दिनचर्या कमी कौन कहले को जाता खटटारे आसिक शोई पड़ती कौन लिखुंट कौन पढ़ुंट अरे सी केतेबेले खाଇବା समय है भूली जाती माने विचित्र ये इवेन कि जितेबाला कि पंडिचेरी रही जो समय कि माने से तो लुकायित भाव में पलि आसले ना भगवत निर्देश अंतर्वाणी शुणिकी किंतु सेठी कौटी रहे कौन खाइबे सब तो गोटे जमी जंत्रवत भगवान जमी सब व्यवस्था कर से समय बहुत कठिन परिस्थिति थे आपर से आसिक इंडिपेंडेंटली रहिले से समय कौ कलिकतार अल्प स्वल्प किए जड़े सब पठाऊे चंदननगर ये लोक सी घर भड़ा देवे पुणी केतबेले पुणी पैसा ठीक समय आसो एमती किसी मान ना आपर कौन जहाँ रहा से कौन चारि पाखे जो सब कई जन युवक जो मैंने देह रखी हिसाब से थे सी कौ दिन कौन जाता कहीं से तमिल लोकंर तो से रोसैया सी तो या खाଇବା भिन्न अभ्यास तो जहाँ भी हो सी एमती विराट किसी एमती किसी आयोजन खाइबार नाला बचापी जहाँ किसी जो सीमित जहाँ किसी जन पठाऊे दान सूत्र पठाऊे गोटे गोटे दिन एमती अच्छे गोटे गोटे लंकार भी श्री अरविंद चलते कम एवं से किसी दुख ना कि किसी अभाव बोली किसी ना बोध ना से बरोदार थी समय से दिनेन्द्रनाथ राय लिखिं से जो मराठी जो रोसैया थिला कौ दिन लुण मेचाए पकई कौ दिन लंका मेचाए पकई हे खाद्यर किसी भाग भाग किसी ना किसी टेस्ट ना कि श्री अरविंद भारी आनंद खाई जाती तो एभली चरित्र स्पष्ट एकदम हूँ जे सी बराबर गोटे भिन्न चेतनार बास कर ब्राह्मी चेतनार बास कर जो आमर मानुषी भल मंद विचार यार से ऊर्धरे तो ये से प्रश्न है यह किपरि संभव
जे जड़े एक विरक्तिकर बा गोटे एमती क्लांतिकर पुस्तक खुशी मन पढ़ी पारे। अरे जो समस्ते क्लांति विरक्ति अनुभव करटा जड़े खुशी मन पढ़ी दूसरी यहाँ केमती संभव कि? ओहो साधारण मनुष्य यहाँ गोटे प्रश्न से गोटे आश्चर्य हो निश्चय यहाँ केमती कथा माँ कहते यार उत्तर दौरान यह संभव जिते बड़े तुम सुख मुझे से पढ़िकी हो देखिकी हो खाईकरी हो जहाँकि हो जो जो सुखटा मनुष्य पाँच जिते बड़े तुम सुख कौन तुम्हें कर बा कौन तुम पाई घटे ताहा उपरे निर्भर करे ना। किए मत कौन कहला किए मत निंदा कला किए प्रशंसा कला किए कौन खाया देला किए कौन ये कला लोक युवाक हे बोर लगे हे मत एमती भल लगे से मत कहीं प्रशंसा करदे ये करदे जो गुड़ाक लोक तार इंद्रियगत अनुभव जो तार सुख दुखटा निर्भर करुड़ाक जार सुख निर्भर करे ना क्या निर्भर करे जो सुख स्वतः आत्मा भितर अच्छी आत्मा होती चिर दुख मिश्र परम सुख बोली बाबाजी बराबर कहते जे भगवान को अनुभव कला जो भगवान होती एक सूक्ष्म उपस्थिति जे सर्वत्र विराजमान मु मोर हृदय मध्यम एमती गोटे स्तर को जापरि जमी पानी भितर बुड़ी बुड़ी गली एकदम बुड़ी बुड़ी जाकि पहुँचली जो गोटे जगह सब रत्न अच्छी कि आउ गोटे कौन आहरी गोटे ये एक जल अच्छी एक ये अच्छी जो थे बुड़ीगला पूरा आनंद आनंद बुड़ीगली सेमती गोटे आनंद समुद्र मध्य हृदय भितर अच्छी जिते बड़े मुझे बास करी अर्थात तुम कौन तुम्हें कर बा कौन तुम पाई घटे ताहा उपरे निर्भर करे नाही बरं तुम सुख बा तुम सुखानुभव तुम मध्य धारण करिथिबा दिव्य उपस्थिति जनित अपरिवर्तनीय आनंदर स्वतः बाह्य परिप्रकाश हो उठे। मु धारण कर आनंदर समुद्र से गोटे पुलक से गोटे संसार से गोटे शक्तिर जमी गोटे ये गोटे अतर बोतल अच्छी जमी से भेपराइज करी सुगंध सबुआड़े प्रसारित होमितिका मो भितर गोटे आनंदर समुद्र अच्छी से गोटे आनंदर तरंग नित्य प्रवाहित होते से स्तर में बास कली एवं मोर माने से मोर सुखानुभवटा से दिव्य उपस्थिति जेहेतु मो भितर से दिव्य उपस्थिति अच्छी भगवान अच्छा आत्मा रूप मो भितर अच्छा सच्चिदानंद रूप अच्छा अपरिवर्तनीय आनंदर स्वतः बाह्य परिप्रकाश हो उठे जो आनंद सरीजार ना सबुदिन सेमती भरपूर होकर अपरिवर्तन होकर अच्छी एवं तार प्रवाह तार पुलक तार सुगंध तार ज्योति एवं तार अमर प्राण से सबू संचारित हो मो बाह्य घटनावलीर कौन से प्रभाव नहीं मु बरं माने सेठी जदि दूषित वातावरण अच्छी सेठी गोटे दुख बा गोटे कौन क्लांतिकर परिवेश अच्छी मु चाहिए से बदल दे पारि कि से माँ पूरा जापान रे फाइट करी पैंडेमिक से गोटे फ्लू पैंडेमिक को से पूरा उड़ी देते आई माँ पुणी पुणी से तापेक्षा तो बर्तमान अतिमान महाशक्ति काम कर अतिमान शक्तिर अवतरण घटी किसी आम खाइब ताठू आहरी सूक्ष्मतर आहरी शक्तिशाली शक्ति है तो माँ शक्ति ना अतिमान महाशक्ति यह तुम मध्य चेतनार एक शाश्वत स्वाभाविक स्थिति रे परिणत हुए। ओहो साधना तो सदा बेले माने सब सर्वोच्च सिद्धि गोटे रात रात लंबा धाड़ी भाई मुहूर्तक हो जाए ना से बेले बेले ओहो मु भगवान को खोजुची मु जने साधक केते टे स्वप्न हो बा कौन गोटे मुहूर्त गोटे मो भर गोटे आनंदर पुलक आसीगला कि गोटे स्वप्न कौन गोटे देखीदेली कि कौन गोटे शुणिली एमती हो 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 पुणी जब मोर निष्ठा अनुजाई मोर साधना अनुजाई मु पुणी आहरी गभीर गभीरतर स्तर को गली एवं मो भितर से भगवत अनुभूतिटा स्थायी होकर रहा स्थायी होकर रहिले सेटा सिद्धि ना हो एक शाश्वत स्वाभाविक स्थिति परिणत हुए समस्त क्रियावली मध्य और सकल परिस्थिति सबू काम करुवा भितर भी जड़े भी तार से आंतरस्थितिटा को जो अंतर गभीर जो सुखटा पाई सेटा को मु सक्रिय अवस्था
जे खाली गोटे गभीरता भितर रहीकि अनुभव करी ताहा नुहे सेटा मध्य मो बाह्य स्तर को आनीपारि जमी उष्म प्रस्रवण भली मुझे मोर सक्रिय अवस्था को आनीपारि एवं सी सकल क्रियावली मध्य एवं सकल परिस्थिति रे जो जगह रहिले मध्य जेल भीतर रुए कि आउ जो जगह मुझे मो वातावरणटा को धारण करी मोर से स्पंदनटा मो चारिपाखे घेरी रही मुझे प्रकार स्पंदन को विकिरण करुटा श्री अरविंद से स्थिति अच्छा बोली सबु अवस्था से आनंद अच्छा एवं सबू जिनस को से सीना प्रभावित करें किंतु बाह्य घटना बेले प्रभावित कर सी है मास्टर ना सी है सेमती लोक जे सी है स्वामी एवं सी सबू जिनस को तार आयत्त रखी निम्न प्रकृति को बाह्य प्रकृति ता इच्छा कबलित ता अधीनस्थ सी ताकू क्यों ये जमती गरुड़ जो अच्छा से कौन सर्प पशिपर कि हावारे ज्योति स्पंदन से विदाई जी ये सेमतिका ये हूँ कौन से गोटे अच्छी सिद्धि ये जोटे से सर्प बा अपशक्तिटा सी से पलैब जोटे भागवत उपस्थित अच्छी श्री अरविंद समस्त विरक्तिकर वस्तु मध्य सबुठ अधिक विरक्तिकर विषय है यही विरक्तिकर पुस्तक साधारण लोक किए पढ़ श्री अरविंद एठारे उदाहरण देते जहाँ मनर रूपांतर और मन उपरे विजय लाभर एक अकाट्य प्रमाण सबुठ विरक्तिकर जिनसटा हूँ से विरक्तिकर बईटा सेटा को जब पढ़ी से आनंद पाँच एतु से गोटे प्रमाण देले आमको जे से मनर ऊर्ध्व चेतन अच्छा से सच्चिदानंद चेतन अच्छा से ब्राह्मी स्थिति अच्छा जोटा कौन से स्तर को उठी जावाई कि ये कारिका गुड़ा सब कहुई से प्रज्ञान ब्रह्म स्थिति को उठी जावाई कि जोठे सब प्रकार शुद्धता एवं सब प्रकार शुद्धता आनंद ज्योति ज्ञान दिव्य शक्ति दिव्य स्पंदन रसे उत्स ये सब कथा ये कारिका कहबार उद्देश्य जे सी गोटे उच्चतर स्थिति रही आमको से उच्चतर स्थिति को नहीं जावाई कि ये कारिका गुड़िक आमको से प्रोत्साहन बा से आशा संचार करुच्ची से शक्ति जोगाऊँच एवं पुणी से कारिकार पुणी गोटे आनुषंगिक से भली एक परवर्ती कारिकाटी हूँ एफोरिज्म नंबर 48 I know my mind to be conquered when it admired the beauty of the hideous, yet felt perfectly why other men shrank back or hated. मन उपरे मोर विजय हासिल होइछे एक कथा बुझिली जेतेबेले से अर्थात मन कुत्सितर सौंदर्य को तारीफ करि पारिला कि जोटा कदाकार कुत्सित देखा जाउची ता पश्चात गोटे सौंदर्य अच्छी सेटा को जमती एठी जोटा जोटा गोटे विरक्तिकर आ जोटा सुखकर तांका सब सुखकर तेणु सेमतिका एठी आमे कहूचे जे एटा कुत्सित एटा असुंदर सेटा सुंदर से सबु द्वैत भावर ऊर्ध्वरे आमको आम साधारण मनुष्य जोटा असुंदर आम मानसिक दृष्टि रे ब्राह्मी दृष्टि रे तांकर असुंदर बोली शब्द किसी तार ना तांकर सब सुंदर कहीं सी होती सत्यशिव सुंदर जी निजे सत्यशिव सुंदर तांकर दृष्टि तांका अनुभव सब सुंदर कहीं सी तो सब निजे होती ना तेणु तांका डिक्शनारी असुंदर शब्द ना सब सुंदर सौंदर्य विभिन्न दृष्टि विभिन्न स्तर अच्छा तो सी कहले यही स्तर को जी जीव जहाँपाई सबू परिस्थिति से जेल रो जोटे रो तापाई सबू सुंदर तापाई सबुठे शांति तापाई सबू सबू जिनस सुखकर सी कारण सी होचंदी दुख विमिश्र परम सुख
आउ सी आत्मा रूप में मो भितर समस्त भितर अच्छा। तेणु जीए जिते बेले जो यहीटा हूँ से साम्यावस्था ब्राह्मी स्थिति से लोक जहाँ को बाहर कौन सी परिस्थिति ताको प्रभावित कर कौन सी मंद परिस्थिति सीए है आत्मजयी सीए है स्वामी सीए है सी ही प्रकृत भगवान को पाई एवं सीए जनक याडे सब माने से बराबर से ब्राह्मी स्थिति से माने से स्थर्य भितर अच्छा से अटल बिहारी तांकु किसी कौन जिनस टाली पारिबो नाही और दोहलई पारिबो नाही अच एभली तांकर माने तेज एवं चेतना। तो जी स्थिति रे रही पारला रही पारे सी ही मन को जय कर किसी दुखर घटना नहीं साधारण मनुष्य सुख दुख भल मंद सुंदर असुंदर ये सब जिनस ऊर्धरे से भगवान पाई भगवान पाई भगवत चेतना बराबर बास कर सिद्धि सी सिद्ध पुरुष जी कि कुत्सितर सौंदर्य को तारीफ कर पारा किंतु अन्य माने कहीं ताठू दूरे जाती घृणा करती को यांकर सेमतिका घृणा ना कि दूरे जबार ना किंतु अन्य माने कहीं प्रश्न पचार कहीं दूरे जाती कहीं साधारण मन चेतनार अच्छा कहीं घृणा करती से कथा मध्य से अनुभव कर पारला से माने कहीं घृणा करती से कथा मध्य अनुभव कर पारला कहीं घृणा कर पारती से से ब्राह्मी दृष्टि से ब्राह्मी चेतना ना से स्तर पहुँची ना से साधारण मन स्तर अच्छा तो तांका स्कैनिंग भितर सब कथा को से देख पार अनुभव कर पार निजे नलिनी दलमांबवत भली सी पद्मपत्र जमी पानी टपाटा जमीका ढलढल हो कौ जिन टच कर पार जमी माने हंसटा एमती पररू एमती तैल बाहर से पानी रे पहरुले कौन से थंडा हो हिमालय केते उच्चतार से अंश सब रोच कि सी बराबर एयर कंडीशन भर रहा भाई अनुभव कर शीत ना कि थंडा ना। अच्छा पुणी प्रश्न पचारे माँ को कुत्सितर सौंदर्य अर्थ कौन जोटा तो आम कहे कुत्सित असुंदर माने असुंदर पुणी असुंदर भितर सौंदर्य अच्छे ये कथा कौन यार अर्थ कौन यह हूँ से एक ही उपलब्धि जहाँ विभिन्न दृष्टिकोण उपस्थापित करा जाइए ए पूर्व कारिकार जोटा कहुई कि सी तो निजे सत्य शिव सुंदर आउ सी स्वयं एवं सी से सौंदर्य दृष्टि सब कथा देखुं असुंदर बोली को कथा आसो असुंदर बोली कौन अच्छी यह हूँ से एक ही उपलब्धि जमी पूर्व जो कथा सब कहीगले यह हूँ से एक ही उपलब्धि जहाँ विभिन्न दृष्टिकोण उपस्थापित करा जाइछे जहाँ विभिन्न अनुभूति दे यही उपलब्धिटी हूँ प्रत्येक वस्तु परमंकर एक परिप्रकाश सब जिनस से परमंक द्वारा सृष्ट परमंकर परिप्रकाश जो परम हेले सत्य शिव सुंदर आउ असुंदर बोली कोट रही सब तो भगवान जो भगवान हेले सत्य शिव सुंदर ये सब सौंदर्य को देखुं से ही अनंत असीम अव्यय तांको सामग्रिक परिपूर्णता और परम वास्तवता मध्य दे जहाँ होइछंती आम हूँ कौन मु गोटे व्यक्ति से गोटे व्यक्ति आम पूरा पूरी अलग भिन्न तेणु मु मोर निज दृष्टि अन्य को देखिली किंतु जो भगवान सब होइछंती से विराट जहाँ भीतर समस्त उद्भूत होइछंती तेणु सी गले सब से व्यक्ति से विश्व से नानात्व भितर सी अच्छा से असीमता भितर अनंत भितर से अच्छा सब से अनंत से असीम तेणु तांका दृष्टिटा तांका डिमेंशनटा अलगा तेणु तांका पई छोट बड़ सुंदर असुंदर ये सब शब्द नहीं यही उपलब्धि हूँ प्रत्येक वस्तु परमंकर एक परिप्रकाश से अनंत असीम अव्यय तांका सामग्रिक परिपूर्णता और परम वास्तवता मध्य दे जहाँ होइछंती सूक्ष्म स्थूल पर्यंत से होइछंती
ସବୁ ସିଏ, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ସିଏ, ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମଭୂତ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ, ଯେଉଁ ମହାଭୂତ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ସବୁ ହେଲେ ସିଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବ ଘୃଣା ଏବଂ କେଉଁଠି ରହିବ ଉଚ୍ଚନୀଚ ଭେଦଭାବ। ତେଣୁ ଆମର ମନ ଓ ତାର ଅଜ୍ଞତା ଓ ତାର ମିଥ୍ୟା ଧାରଣାକୁ ଆମେ ଯେବେ ଜୟ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯେତେ ଜୟ କରିପାରିବା, ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଦେଇ ସେଇ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ପ୍ରେମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିବା, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁଯାୟୀ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ଓ ଅସୁନ୍ଦର, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଧାରଣାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ, ଯେଉଁ ବିରୋଧାଭାସ ସାଧାରଣ ମନ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଜଣେ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଲୋକ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏବଂ ସେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ସିଏ ସବୁ ସୁଖମୟ, ସବୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ, ସବୁ ଦିବ୍ୟ। ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇଠି ସେ ବାସ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ଏ ଦ୍ୱୈତ ବୋଧର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ମନେକର ଆମର ସେ ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା ଥେସିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଥେସିସ୍ ଭଗବାନ ଏମିତିକା, ଭଗବାନ ସେମିତିକା, ସେମିତିକା ସେମିତି, ଆମ ମାନସିକ ଧାରଣାଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ଆମର ତ ସେ ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯିଏକି ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁ ସୁଖମୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ଶୁଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଚେତନା, ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ଥିତି, ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି। ସେଟାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆମ ମାନସିକ ପରିଭାଷାରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ଆସିବ? ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୂତନ କଥା, ଯିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ସେ ଜାଣିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ଯେତେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବନି। ଏପରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ, ପରମ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପରମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଆମେ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଏଭଳି ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯାହା ଆମ ବୌଦ୍ଧିକ ଅବତାରଣା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଆମ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭୂମିରେ, ମନଗତ ଭୂମିରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର, ସେଇଟା ଅସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ଦିବ୍ୟ, ସେଇଟା ଅଦିବ୍ୟ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟେଗୋରାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କରୁଛୁ, ୟାଠୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ସେଇଟା ଏକ ଭିନ୍ନ ଜଗତ, ଭିନ୍ନ ଚେତନା, ଭିନ୍ନ ଉପଲବ୍ଧି। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥାଟାକୁ କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଚେତନାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଅ, ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କର, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଚେତନାକୁ ଆବିଷ୍କାର କର, ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଆବିଷ୍କାର କର, ମନକୁ ନୀରବ କରି, ଶାନ୍ତ କରି, ସମର୍ପିତ କରି, ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିକୁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁଖ ଭୂମିକୁ ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କର ବା ଉନ୍ମୋଚିତ କର, ବା ତା ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇକରି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଏଇ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ଏ କାରିକା ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରହେଳିକାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ, ପ୍ରହେଳିକା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି, ଏବଂ କୁତ୍ସିତ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୁତ୍ସିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ଓଲଟା, ଦୁଇଟା ବିରୋଧୀ ଶବ୍ଦ, ପୁଣି କୁତ୍ସିତ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣି ଏ ଦୁଇଟା ବିରୋଧାଭାସ ଭିତରେ ପୁଣି ସମନ୍ୱୟ, ପୁଣି ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରହେଳିକାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ କୁତ୍ସିତ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସକାଶେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିପାରିବା, ଏଇ ମନରେ ଥାଇକରି ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, ମନ ଚେତନାରେ ଏଇ ସମନ୍ୱୟ ଆସିପାରିବନି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ, ବିରୋଧ ଭାବ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କାରିକା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ମନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତିକି ବୁଝିଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପରମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଦେବା ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମ ମନସ୍ତରରେ ବୁଝିଛୁ, ଏଇଟା ହିଁ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରେମ, ମନସ୍ତରରେ ଆମେ ବୁଝିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ଆମେ ପ୍ରେମଟାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବାପ ପୁଅକୁ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମାନବିକ
ସ୍ତରରେ କଥାଟାକୁ ଏମିତି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅଛି ତାର। ହଁ, ଆମେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଦେବା। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବୋଇଲେ କ'ଣ? କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ? ଯେ ଆମେ ମନରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟା କରିଛୁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟା କରିଛୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିଛି। କ'ଣ ସେଟା? ମୁଁ ମନେ କରେ, ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଉପାୟରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ସବୁ କଥା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏଟା ବୁଝିପାରିବାନି, ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝିପାରିବାନି। ମନକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ, ଶୁଦ୍ଧ କଲେ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖ କଲେ, ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବା ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହାରେ ଯୁକ୍ତ କରିକିରି ତାକୁ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବା ଗୋଟେ ରକେଟ୍ ସେ ଯେମିତି ଉପରକୁ ଉଠି ନେଉଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍, ଏଇ ସ୍ପେସ୍କୁ ଆମର ଏଇ କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ତାପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଥ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍କୁ ଉପରକୁ ଯାଇକରି ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ମହାକାଶ, ଇଏ ଆକାଶ, ମହାକାଶ, ସେଠି ଗଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜଗତ ସେଟା। ତ ସେମିତିକା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଜଗତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନରେ ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଓ ତାହା ହୋଇଯିବା। ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ତ ଅଲଗା ଅଛି, ଅଲଗା ଜିନିଷଟା ନା। ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବି, ମୋତେ ଜଣେ କହିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀକା ଲଡ଼ୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସେଥିରେ ମସଲା ପଡ଼େ, କେମିତି ତାର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲା କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତାର ଛବିଟା ପଠାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପଠାଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବି? ମୁଁ ଆମ ଏଇ ଗୁଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଲଡ଼ୁ କରୁଛି, ଏମିତି କରୁଛି, ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କ'ଣ ମିଠା ଟିକେ ପକାଇଥିବ କି କ'ଣ, ଆଉ ଏମିତି ହେଇଥିବ ନା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଧର ଖାଣ୍ଟି ଘିଅରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କ'ଣ ମସଲା ପକାଇଛି କି ଆଉ କ'ଣ ପକାଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ ତାର ସ୍ପେଶାଲିଟିଟା କ'ଣ ଜାଣିବି? ତ ସେମିତିକା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜଗତ ଭିତରେ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆଉ ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତା'ପରେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ତା ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ହେବା, ଏବଂ ଯେତେ ତା ଭିତରେ ବାସ କରିବା ତାହା ହୋଇଯିବା। ଏବେ ସବୁ ବାହାରିଛି ନା, ସବୁ ଆମର ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 5 ପରେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଥିଲା, ୱି ଆର୍ ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଇଭନ୍ ଆଜ୍ ହି। ଖାଲି ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କହିବାନି, ଭଗବାନ ଏମିତିକା 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 ଏମିତିକା, କି ଆମେ ଭଗବାନ ହେବା, ଆମେ ସେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା, ଆମେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ଏଇଟା ତ ଯୋଗ, ଯୋଗର ଅର୍ଥ ସେୟା। ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବି, ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଇଯିବି। କାହିଁକିନା ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଯେତିକି ମୁଁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବି, ସେଇ ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ, ସେଇ ସ୍ପାର୍କଟାକୁ ଯେତିକି ବଢ଼େଇବି, ମୁଁ ସେତିକି ଦିବ୍ୟ ହେଲି। ଆଉ କୋଟେସନ୍ ଦେବାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ହେଇଗଲି। ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝିପାରିବା। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନଲେଜ୍ ବାଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଗଲେ, ଏକ ହେଇଗଲେ, ମିଶିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଗଲେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଏଇଟାକୁ ନଲେଜ୍ ବାଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୋଗିକ୍ ନଲେଜ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ୍, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଚାର ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆମେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ଯାହା ଆମ ମନର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଆରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ କହୁଛି, ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସେ ମାନସିକ ପରିଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଓ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମ ଶବ୍ଦରାଜି ତା ପରିସ୍ଫୁଟ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା, ସେ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନସିକ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ସେ କେମିତିକା, 1008 ନାଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର କି 108 କର କି 1008 କର କି କୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କର, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବନି, ମାନସିକ ପରିଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରହେଳିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୂଢ଼ୋକ୍ତି, ଏବେ ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସ ଥିବା ଗୋଟେ ଗୂଢ଼ୋକ୍ତି, ଗୋଟେ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୂଢ଼ୋକ୍ତି
व्यवहार करिसेंती आम ये गोटे ये कथा ये शब्द केतटा वाक्य को भला शुण ये आफोरिज्म माने कौन कौन है आफोरिज्म कहीं आफोरिज्म से लिखिं आम मानसिक गठनटा को आम मानसिक चिंताधाराटा को आम मानसिक सीमितता को आम मानसिक अज्ञताटा को भांगी देवाई एवं ताको ऊपर को उठाइवाई तू जिते जाचु जिते कहूँ जहाँ कहूँ तथापि एगुड़ा किसी नुटा सीमित एगुड़ा भगवान ताठू आहरी ऊर्धर और से सत्यर कौन से किसी नुह तो ही मानसिक स्तर भगवान आउ गोटे अनदर डिमेंशन तेणु श्री अरविंद अधिकांश स्थल प्रहेलिका अर्थात जोटा हूँ गोटे कौतूहलपूर्ण गूढ़ोक्ति को व्यवहार करिसेंती आम मन को साधारण चिंतनर गुला मध्यरु आम गोटे से गुड़े चलीचु आम मानसिक धारा आम मन को साधारण चिंतनर गुला मध्यरु ऊपर को उठाइबा ये कारिका गुड़िक लिखाई आमको यही मेंटल लेवल रू से सोल लेवल साइकिक लेवल से जो प्रज्ञार जो लेवल यही लेवल रू से लेवल को लिफ्ट करने कि उत्तोलित करने कि ये कारिका गुड़िक सब लिखाई बाह्य प्रातिभाषिक अबोधगम्यता पश्चात जहाँ किसी कहुई बाहर को ये जिनसा किसी बुझे कौन उल्टा पल्टा लगुच किंतु या पश्चात गोटे आलोक अच्छे गोटे वार्ता अच्छे गोटे गोटे सत्य को से प्रकाश करने शब्दटा व्यवहार कर वाक्यटा लिखिं जहाँ यथार्थ अनुभूत और दृष्ट जो कथा श्रीअरविंद कारिका भितर प्रकाश करुँचा से अनुभव कर देखी ज्ञान चक्षुरे प्रज्ञा चक्षुरे अनुभव कर देखी सेटा को एक प्रकार विरोधाभाषापूर्ण शब्द में प्रकाश कर जोटा कि आम मन स्तर बुझीपारानी जेहेतु बुझीपारानी तेणु मनर ऊर्ध्व स्तर को जावाई चेष्टा करवा ऊर्ध्व स्तर को गले से कथा आम आगे स्पष्ट हो बुझीपर मुझे बुझीपारनी कहीं मो भीतर से ज्ञान से आलोक ना से दृष्टि ना बोली बुझीपारनी जो से ऊर्ध्व स्तर को उठीजी मोप से साधारण एवं मोप स्वाभाविक हो जहाँ यथार्थ अनुभूत और दृष्ट सेटा तो कारिका भितर लिखिं तार आलोक दर्शन निमंते आमको समर्थ करने ता पश्चात जे श्रीअरविंद आलोक अच्छी आउटा से उपलब्धि कर गोटे सत्य एटा ये आलोक दर्शन निमंते आमको समर्थ करने से कारिका गुड़िक लिखिं यही विरोधाभाषापूर्ण शब्द व्यवहार कर आम मन को जिते नमनीय करवा जिते सूक्ष्म करवा जिते शांत करवा जिते एकाग्र करवा जिते ऊर्ध्वमुख करवा बा अंतर्मुख करवा तेबे जाइकरी यार गूढ़ रहस्य आम बुझा तेबे जाइकरी तांकर जो अन्यान्य लेखा सावित्री हो लाइफ डिवाइन हो जहाँ श्रीअरविंद लिखिं सब से उच्चतर चेतनार लिखिं ना कौट लिखिं एटा को जब बुझीपारे सेटा केमती बुझा आउ मन स्तर साधारण मन स्तर बुझीपारे तेणु मन को शांत करने हुए शुद्ध करने हुए भगवान को भल पाया हुए भल पाइले कृपारू सी आम भर प्रवेश कर आसिले कृपा रश्मि आलोक शुद्धता चेतना संचरित हेले जाकर आम भर प्रवेश कले जाकर बुझा अच्छा ता माने मन जगत पर्यंत जमराज अछंती जमराज हेले से तार छाया से चेतनार गोटे तार गोटे विकृत रूप अपछाया तेज आज जो ये दुईटी ये ता सहित संपर्कित मु प्रथम गीतार केतोटी जे जो कथा कहले जो ब्राह्मी स्थिति श्रीअरविंद अच्छा बोली सब कथा को सुख दुख सुंदर सुंदर सब सामान बा तार ऊर्धर सी सबुठे से या द्वारा से प्रभावित नुहति से तार गोटे उच्चतर भूमि अच्छा जोठे से सब कथा हूँ आनंदमय सब कथा हूँ सौंदर्यमय एवं जो भूमि से अच्छा तो गीतार आम यहाँ गोटे भिन्न भाव में आम भाव गोटे गोटे कालस लोकटा बोधे ताकू किसी गुड़ाक टच करूँ ना ना से सब जापार से आउ गोटे उच्चतर स्थित अच्छा
मो गीतार जो ब्राह्मी स्थिति कथा कहुई मुझे अल्प कई श्लोक पाठ करुचे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। से कहले हे पार्थ मनरु जेते बेले सब कामनार विनाश हब प्रजहाति जहाति प्रजहाति है आत्मा को सी आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मार थी आत्मा द्वारा से तुष्ट थी अर्थात आत्मा हेले सर्वानंद नित्यानंद सचिदानंद आत्मा को अनुभव आत्मा को आत्मा स्तर में पहुँचे आत्मा को आविष्कार करी आत्मार आनंद को से आनंदित होइथिबो। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट आत्मा द्वारा आत्मा मध्य प्रवेश करी से तुष्ट बा से संतोष से आनंद को अनुभव करुथिबो। आउ सेई तरे सेई चेतनारे सेई प्रज्ञा चेतनारे स्थित होइथिबो ताकू स्थित प्रज्ञ कहा जाए। सेठे वास करुछि से भीतर प्रवेश करुछि सेठे वास करुछि स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। अच्छा आउ कौन तार लक्षण दुखेशु उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। जेते दुख थिले भी सी टिके उद्विग्न हबार नाही आउ जेते सुख जो लोक जेते नाचुथिले भी सी विगत स्पृह से जो सुख पाइक साधारण लोकटा ए आज बढ़िया खाइले बढ़िया भोजी होता से नाचुची से तार स्पृहा नहीं से तो गोटे आउ गए उच्चतर आनंद को बराबर पार करुना बास करुँ इंद्रिय साधारण इंद्रिय तृप्ति कौन कि वितराग भय क्रोध राग ना कि भय ना कि क्रोध ना यू सी यार ऊर्धरे तार गोटा चली जाइए विगत वितराग भय क्रोध स्थितधी मुनिरुच्यते। स्थित प्रज्ञ जे प्रज्ञा वास करुच्ची स्थित धी धी माने बुद्धि से उच्चतर बुद्धि कथा कहूँ ये ज्ञान बुद्धि स्थित धी से स्थित धी केतेटा तार प्रतिशब्द स्थित प्रज्ञ स्थित धी ताकू ही मुनि कह जाए। मुनि नुह जे गोटे दाढ़ी छाड़ी कि लंडा हो पड़ी गेरुआ पिंधि से नुह यही चेतनार जे बास करुच्ची सी है मुनि जहाँ मन निर्मल एकाग्र एवं से उच्चतर चेतनार स्थित। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। से कहा को एकदम गोटे माने इमोशनल है कि कहा को अभिनंदन करुनी बा कौन से तत्प्राप्य शुभाशुभम किसी गोटे भल घटीगला से उत्फुल्लित नुह कि मो कौन गोटे दुखद घटना घटला से भी से विमर्श नुह एवं जहाँ जहाँ साधारण लोक पाइक बहुत हो जाए मनकर तार गोटे पिलापिली होता पुओटी होगला कि गोटे प्रमोशन पाईगला कि आउ कौन धन संपत्ति पाईगला कि कौन है से हठात से पाइक से आनंदित होची अभिनंदन करुच्ची खुशी होची। किंतु जो लोक से शुभ हो कि अशुभ हो सबु परिस्थिति आनंद अनुभव करुच्ची माने सी कौन कौन पाइकरी जे आनंदित होगला कि से तार किसी हबार नहीं बा कौन गोटे खराब कथा घटीगला बोली से मत तार दुखित हे नहीं न अभिनंदती न द्वेष्टि कौटे द्वेष देखिकी खराब देखिकी सी क्रोधित बा हतोत्साहित नुह बा कौन टिके पाईगले खूब माने खुशी होकर से उत्फुल्लित नुह तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात ता सीए ही से प्रज्ञा चेतना रे वास करुच्ची जहाँ मनर ऊर्धरे बुद्धिर ऊर्धरे यहाँ तार लक्षण जड़े आत्मविद प्रज्ञाविद जे प्रकृत से आत्मा को अनुभव करता लोकर एटा हूँ लक्षण। यदा संहरते चायम कुर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। से कहते गोटे कूर्म बा गोटे कईछ
से जमी तार अंग प्रत्यंग तार जो चार्टा गोड़ कि बेकटा काढ़ी से चलला बेलू जमी करे सेटा को जमी तार से जो माने तार पिठीटा हूँ तार गोटे प्रोटेक्टिंग सिल्ड भली एवं ता भीतर को जमी सब टाणी आने जमी आमर जो साधारण इंद्रिय गुड़ाक जो निम्न जिनस प्रति आसक्त आखिरे गोटे भल एमती देखी जोटा भल लगे कान सेमती गोटे एमती शुणी शुणुथी जिते पंच इंद्रिय को तार सब इंद्रिय को तुष्ट करने जो जो विषय तार गोटे विषय अच्छी कौ जिनस को से भल पाए ताड़ गुरा आकर्षित हुए मोहित होकर रही थाए से क्रिकेट खेल हो मैंने आउ छाड़ तार आए ना से सेमितिका जिते बड़े यही निम्न बाहिक निम्न जिनस से निजक ओहरे आणिकी आत्मा भितर प्रवेश करने को चाहिए कहीं से गोटे उच्चतर आनंद अच्छे उच्चतर सौंदर्य अच्छे उच्चतर प्रेम अच्छे जी से करें गोटे कच्छपर उदाहरण दिगला यदा संघरते चायम चायम कुर्मु अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता आमर सब इंद्रियटा तार इंद्रियर जो माने आसक्त हबार विषय तार जो विषय आसक्ति रही से से ओहरिकी आत्मा भितर प्रवेश कर आत्मा भितर वास कर तार प्रज्ञा ही प्रतिष्ठित से प्रज्ञा प्रतिष्ठित अच्छे बोले तार प्रमाण विषया विनिवर्तन्ते नीराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते जमीतिका कह प्रत्येक इंद्रियर गोटे आसक्त विषय रही से आड़ को बेसी आकर्षित हो जाए आउ जदि निराहारस्य देहिना मुझे आहार आहरण कर ग्रहण करुँच से जिनसा मुझे सम्मति दूसरी भल पाँच ये हूँ बोली मुझे से जिनसा वितराग होसे जिनसा प्रति आसक्त हेबी ना अर्थात मुझे आहरण कलिनी मु निराहारी हो गली सेतेबेले मोटू से खसी पड़ो ना मुझे गोटे पसंद करुली गोटे इम्पोर्टेन्स दौली पछरे गोड़ौली बोली सी मत नचौला कि प्रति मुझे आसक्त थी मोहित थी जो से मुझे चाहिए नो करदेवी प्रत्याख्यान करदेवी आउ से शुक्ला पत्र बोली मोटू झड़ीज ना से भली रसवारजम रसोप्यस्य से कथा किंतु प्रत्येक जिनस पश्चात मुझे से तार से निम्न आकर्षण टाक वर्जन करी आउ किंतु प्रत्येक जिनस पश्चात गोटे दिव्य रस अच्छी गोटे रसानुभूति अच्छी गोटे आनंदानुभूति अच्छी एवं सबुठू से जी हूँ रस मध्य रसर रस आउ से आनंद रस जो आत्मा परम दृष्ट्वा निवर्तते कहीं भगवान होचंते रसोमय ताको रसो वैसा तांको कहा जाए रस एव सह रसो वैसा एवं सी जेतेबेले से परम को मु दर्शन करी जी होचंते आनंदर आनंद दुख विमिश्र परम सुख तांको परम दृष्ट्वा तांको जेतेबेले मु से परम को जेतेबेले मु दर्शन करी जी होचंते सर्वोच्च आनंदर खणी गंताघर यही निम्न जिनस गुड़ाक भल लगे जे अमृतपान कला आउ ताकू ए सुरा पान आउ भल लगे कि ये निम्न इंद्रियगत आनंद निम्न प्राण निम्न आनंद ताकू भल लगे सी ही प्रकृति में स्थित प्रज्ञ बोली कहुई तबे गोटे पुणी गोटे कविता पाठ करी दि विटनेस स्पिरिट आम समस्त भितर अच्छा श्री अरविंद कविता जे ये सब साक्षी पुरुष जे हेले जो आत्मा सब कथा जो दृष्टि देखुंट तांकर जो गोटे भिन्न दृष्टि आउ ये भिन्न दृष्टिटा आम जोटा को निर्वाण चेतना बोली कहूँ से गोटे प्रकृति भाव गोटे ऊर्ध्व चेतना जोठे जोड़ा जहाँ विशाल जमी शांत सेमती शुद्ध सेमती ज्योतिर्मय सेमती ता भीतर पाखे प्रज्ञा दृष्टिटा अच्छे कहीं तुम गोटे ऊर्ध्व को नगले मुझे गोटे जिन सब निम्न जिन तो सामिल हो जाइए आ मदुआ कौन चिनी पार किए साधु किए असाधु किए सत्य कौन मिथ्या तार गोटे विचार कर शक्ति जो अच्छी कि मुझे तार ऊर्ध्व को गले जाकि कौटा सत्य असत्य कौटा ठीक भूल जानीपरि तो सेमती दि विटनेस स्पिरिट जो माने साक्षी आत्मा ये सब देखुं अखी अखी साक्षी
I dwell in the spirit's calm, nothing can move, and watch the actions of thy vast world force. ସେ ଚେତନାରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଘଟଣାକୁ ସେ ଏକ ସମୟରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି. Its mighty wings that through infinity move, and the time gallopings of the deathless horse. ମାନେ କାଳଟା ଯଦି ସେ ଅଶ୍ଵ ହୁଏ ସେ କେମିତି ଗ୍ୟାଲପ କରୁଛି, କେମିତି ମାନେ ଗୋଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିବ ଡବଲ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକି ସେ ମାନେ ଡବଲ ଜମ୍ପ ନେଉଥିବ, ତାର ଗ୍ୟାଲପ ଅଫ୍ ଦି ଡେଥଲେସ୍ ହର୍ସକୁ ଦେଖୁଛି. ତାମାନେ କାଳର ସମସ୍ତ ଗତି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ସିଏ. This mute stupendous energy that whirls the stars and the nebulae in its long train like a huge serpent through my being, coils with its diamond hood of joy and fangs of pain. ପ୍ରଥମଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱମେଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ ସମୁଦାୟ କାଳଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଵ ଭଳି ଆରୋହଣ କରୁଛି, ସେ କାଳତୀତ ଆଡ଼କୁ ବା ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଏ ଗୋଟେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି. ଏ ସବୁଟା ଗୋଟେ ଅଶ୍ଵ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି. ଏ ଅଶ୍ଵର ଏ ସମୁଦାୟ କାଳଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଧାବମାନ ଅଶ୍ଵ ହୁଏ, ଏ ଅଶ୍ଵର ମୁଖ କ'ଣ, ଲାଞ୍ଜ କ'ଣ, ଆଖି କ'ଣ, ପେଟ କ'ଣ, ମୂତ୍ର କ'ଣ, ମଳ କ'ଣ, ତାର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାବମାନ ଅଶ୍ଵ କାଳଟା. ଇଏ ସେମିତିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ପ, ଗୋଟେ ସର୍ପ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ କାଳ ସର୍ପ, ଗୋଟେ ସର୍ପ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରାଗଲେ କ'ଣ ହେବ? The mute stupendous energy that whirls the stars and nebulae in its long train like a huge serpent through my being, coils with its diamond hood. ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଧରିଛି, ତା ହୁଡ୍, ତା ଫଣାଟା ଡାୟମଣ୍ଡ ହୁଡ୍, ମଣିରାଜ ସର୍ପ, ଏବଂ ତା ଯେମିତିକା ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲେକ୍ଟା ଅଛି ମୋ କାଶ୍ମୀରରେ, ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ସାପ ଅଛି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, ମଣି ଅଛି, ସେ ଆଲୋକରେ ସବୁ ଦେଖିପାରେ. Like a huge serpent through my being, calls with its diamond hood of joy and fangs of pain. ତାର ଓଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ପଢ଼ିବି କାହିଁକିନା ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଶବ୍ଦ ଯୋଜନାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ନା. It rises from the deep inconstant deep, upcoiling through the minds and hearts of men. ସେଇ କାଳ ସର୍ପ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ତାର ପ୍ରାଣ ଦେଇକରି ସେ ଆରୋହଣ କରୁଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ମାନେ ଫଣା ଟେକିକିରି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି. All this I bear in me, untouched and still, assenting to thy all-wise inscrutable will, assenting to thy all-wise inscrutable will. ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଏଇ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଛି ତାର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଆତ୍ମାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାହା ଟଳେ ନାହିଁ ତହିଁ ମୋ ନିବାସ. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖାଲି କବିତା ସକାଶେ କବିତା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଅନୁଭୂତିଟାକୁ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି. ନିରେଖ ହୋଇ ବସି ତୁମ ବିଶାଳ ଜଗତ ଶକ୍ତି କେହ୍ନେ କର୍ମରତ, ପକ୍ଷତାର ପରାକ୍ରମୀ ଅସୀମରେ କିପରି ବା ରଚେ ଅଧିବାସ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ବାଜି ହେଲା ଅଶ୍ଵ. ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଵ ଅଛନ୍ତି. ଅଶ୍ଵ, ଅର୍ବ, ଆମ ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଆମେ ପିଲାଦିନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ବାହାଘର ମାନେ ବରଟା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଯିବ ନା, ଆଉ କାରଟାରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କି? ସେଦିନ ସେ ରାଜା, କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବନି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର. ବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ. ଯେଉଁଦିନ ତାର ବାହାଘର ହେବ ନା, ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ମାନେ ସେ ରାଜା. ସେଦିନ ରାଜା, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ରାଜା ବସିକିରି ଯିବେ. ତ ମଣିଷମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଶ୍ଵ.
तापर असुर गुड़ाक महाबलवान तांको घोड़ा अलगा तांको घोड़ाटा ना हूँ अर्ब ता असुर गुड़ाक आहरी ऊपर को अच्छा आहरी टिके शुद्ध आहरी टिके सुंदर आउ टिके दिव्य से माने होउछन्ति गंधर्व गंधर्व मानक घोड़ाटा ना हूँ बाजी ता से घोड़ा मध्य भारी चकचकिया आहरी टिके देखा सुंदर आउ देवता मानकर जो घोड़ा अश्व मान असली प्राण आम प्राण शक्तिटा से गंधर्व मानकर घोड़ा ऊपर को हूँ देवता मानकर घोड़ा तांको देवता माने दिव्य शुद्ध ज्योतिर्मय तो ता प्राणटा ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय जोटा शुद्ध जोटा सेटा हूँ श्वेत सेटा हूँ धला तेणु तांको अश्वटा हूँ श्वेत अश्व तार ना हूँ हय तथा श्वेतेर हयर युक्ते महति स्यंदने स्थित माधव पांडवश्चैव शंखदधमौ पृथक पृथक माने कृष्ण अर्जुन जो रथरे बसचंती सेटारे जो घोड़ा जो चाहिए सी हेले हय ये से बाजी शब्द व्यवहार कहले सो कथा एमुक विपुल शक्ति से सब से लाइन टा पूरा पढ़ नी एवं मृत्युजयी बाजे चलय केशने करी काल क्षुराघात ता खुरा रे आघात करी जो गैलप करिया कथा कहते सी केमिति बाजी केमितिका सी मृत्युंजयी बाजी तार मृत्यु ना अर्थात से कालजयी मृत्युजयी बाजी चलई केशने करी काल खुरा घात काल को भितर से केमती गैलप करुच्ची खुरारे आघात देकरी एमुक विपुल शक्ति घुराए जा नक्षत्र मालिका काल ये भली एक शक्ति ए नक्षत्र मालिका को से भी घुराउची केते बड़ शक्ति तार अच्छे ए सब को से साक्षी पुरुष देख पारे सारा विश्वटा केमती फंक्शन करुच्ची केमती गोटे हाई एनर्जी केमती गोटे उच्चतर शक्ति सब कथा को परिचालित करुच्ची आम कह ये मुझे करदे सी करदे सी करदेला एमती करला से एमती करला कि सब जिन पश्चात केमती गोटे महाकाल अच्छे और सी कि एक शक्ति एमुक विपुल शक्ति घुराए जा नक्षत्र मालिका दीर्घ पुच्छे ओहलाए दीर्घ पुच्छे ओढ़ाई अवलीले लक्ष्य निहारिका सीए माने लक्ष लक्ष तमें ता पुछरे लक्ष लक्ष निहारिका को से मध्य घुरौची अवलीलाक्रमे सुविशाल सर्पसम कुंडलित जहा मो सत्तारे मो सत्ता भितर मध्य कि आमर जो कुंडलिनी से गोटे सर्प सहित तुलना कही तार विपुलायतन शक्ति जिते मो भर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो माँ कहते अलमाइटी सावित्री माँ केवल कह अलमाइटी पावर्स आर सॉट इन नेचर सेल्स आम सेल भितर अलमाइटी पावर अच्छा यहाँ हूँ गोटे शक्तिर खणी आम एपर्तन साधना द्वारा यहाँ सब जागृत हुए आम से आम भितर अपव्यवहृत होकर अव्यवहृत होकर सुप्त होकर जीवनटा आम पड़ू मु सब शक्तिर मालिक कि निजक मन कर दुर्बल मो भर सब सुप्त आकार अच्छी तो सुविशाल सर्पसम कुंडलित जहा मो सत्तारे ये को बाहर ना मो भर अच्छे फणा जा हीरक हर्ष दंतजार व्यथार शलाका श्री अरविंद का आफोरिज्म कौन कविता भी से जागे से जे परिहरी निश्चितिर पांशु गभीरता विमुंची कुंडलितार मनीषर मानसे अंतरे माने आम भितर कुंडलित होकर अच्छे सुप्त होकर अच्छे पुणी जागृत हबार योग साधना द्वारा जागृत हबार संभावना भी अच्छी एवं श्रीरंग भितर एटा जागृत तांको भितर कौन अनुभव से लिखचन ना अवशेषे चुंबे क्यों ज्योतिस्नात सुप्तिर तुंगता एठू उठिक निश्चेतनार उठिक से अवशेषे
ଚୁମ୍ବେ କେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ନାଥ ସୁପ୍ତିର ତୁଙ୍ଗତା ସ୍ପର୍ଶ ଲଭେ ପ୍ରସାଦର ମାଧୁରୀର ଶାଶ୍ୱତ ଲୋକରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ଭୁବନକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିପାରେ ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ବହି ରହିଛି ମୁଁ ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ ଅଚଳ ମାନି ନେଇ ତବ ଇଚ୍ଛା ସର୍ବଜ୍ଞ ଯା ଏବଂ ଅଗୋଚର। ସିଏ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ସେ ଅଗୋଚର। ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କବିତା ମଧ୍ୟ, ଇଏ ଆଫୋରିଜିମ୍ ଯାହା, ଇଏ କବିତା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଇଏ ଆଜି ଆମର ଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ମହାନ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଦି ଧାଡ଼ି କଥା, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ସେ କିଭଳି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଏବଂ ଇଏ କରୁଛି। ପରିଶେଷରେ ପୁଣି ସେଇ ଆଜିକାର ଆଲୋଚ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଫୋରିଜିମ୍ ଦୁଇଟି ପୁଣି ପାଠ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାର ମର୍ମ ଏବଂ ତାର ରସକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। Aphorism 47, when I read a wearisome book through and with pleasure, yet perceived all the perfection of its wearisomeness, then I knew that my mind was conquered. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାନ୍ତିକର ବହି ମୁଁ ଆମୂଳଚୂଳ ପଢ଼ିଲି ଖୁସି ମନରେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହିଟିର ଦୁଷ୍ପାଠ୍ୟତାର ଉତ୍କର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲି, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ମୁଁ ମନକୁ ଜୟ କରିଛି। ମୋର ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏଗୁଡ଼ାକ ଅମଣିଆ ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ମନ କରିଛି କି? ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଉପରେ କୋଦି ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଲେ ମାନେ ମନକୁ ଜୟ କରିବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରିକାଟି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି। Aphorism 48, I knew my mind to be conquered when it admired the beauty of the ideas, yet felt perfectly why other men shrank back or hated. ମନ ଉପରେ ମୋର ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇଛି। ଯେତେଟା ଡିଗ୍ରୀ କର, ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଯା, ଏ ମନ ସ୍ତରରେ ରହିକରି କ'ଣ ଏପଟେ ସେପଟେ ଟିକେ କରିଛୁ ନା। ଆଉ ଯୋଗୀ ଯିଏ, ସିଏ ହେଉଛି ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୟ କରିବ ସିଏ ହେଲା ଯୋଗୀ। ମନ ଉପରେ ମୋର ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇଛି ଏକଥା ବୁଝିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ କୁତ୍ସିତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ତାରିଫ କରିପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ତାଠୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୁତ୍ସିତଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ବା ତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।